Yes, start. Good morning, all to the respected dignitaries, esteemed speakers, panelists, scholars, and distinguished participants joining us from across the globe. I extend a warm and heartfelt welcome to all present here to the 2 day online international multidisciplinary conference on global issues and media response, being held on November 29th and 30th, 2025, jointly organized by Writers Reservoir India, a think tank of communicators, Communication Today, a media quarterly bilingual journal. I am Babita Sharma, organizing secretary of the conference and one of the founding members of Writers Reservoir India. I am currently working as an assistant professor at the Faculty of Journalism and Communication, the Maharaja Sirajirao University, Baroda, Gujarat. And it is my immense honor to deliver the welcome address for today's panel discussion. Being a woman, it really brings me joy to do this. The theme for today's panel discussion is Women, Equity and Voice, the changing face of global media. It invites us to reflect on how women's participation and representation in media continue to evolve in a globalized, digitally connected world. As communication landscapes transform rapidly, women's voices in newsroom, digital platforms, and public discourse play an increasingly vital role in shaping fair, diverse, and equitable narratives. We are honored to have with us an exceptional group of panelists who bring academic depth, industry experiences, and strong advocacy to this dialogue. Without a further ado, I'm going to introduce today's revered panelists, who all are an epitome of women equity and representation and creating a change in their own ways. First we have Ms. Sujata Parashar. She is a prominent media personality with over 17 years of experience in Indian news and media industry. She has worked with leading national networks including Republic, Bharat, WION, Live India, and Sadhana Network, contributing to strong editorial programming and on-ground reporting. She is currently serving as consulting editor at Cricket Predicta, a fast-growing digital cricket platform. As Parasha is widely known for her strong and vocal stand on social issues, political developments, and women's equality, making her a distinct and influential voice in contemporary media. Next, we have Professor Dr. Aisha Tahira Rashid. She is a distinguished academician, researcher, currently serving as a professor at the Department of Mass Communication, Assam University, where she has been teaching for last 20 years. Her research spans digital media and behavior psychology, health communication, and game studies. An academic achiever, she is a gold medalist in mass communication from Tezpur Central University. Professor Rashid is presently leading an ISCCR sponsored major research project. She earned her PhD in 2014 from Behrampur University, Odisha. We welcome you, ma'am. Professor Bandana Pandey is our next panelist. She's the Dean of the School of Humanities and Social Sciences at Gautam Buddha University, Greater Noida. Professor Pandey is widely respected for her strong academic leadership and her contribution to the fields of media studies, social sciences, and interdisciplinary learning. Her work reflects a commitment to fostering critical thinking, innovation, and inclusive academic environments. Last but not the least, Professor Dr. Sonal Pandya, sorry. She's the professor and head Department of Journalism and Mass Communication, Gujarat University. With more than 25 years of dedicated contribution to value-based education, Professor Pandya is recognized for her institutional leadership, curriculum development, research guidance, and extensive academic administration. She has served on numerous prestigious committees, including UPSC, GPSC, RPSC, and has mentored international academic exchange programs too. Her accomplishments include collaboration with organizations such as UNICEF, Germany, SEVA, and contribution to health communication, curricula, election research, and biodiversity communication projects. A recipient of awards like Proud Daughter of Gujarat Award and Quality Mark Women Award, she embodies a blend of intellectual sensitivity, empathy, and dynamic academic leadership. We welcome you all. And before we move ahead,
I I want to extend a warm token of appreciation and welcome to all our speakers for today's panel discussion. So we now felicitate them, all of you, with an e-bouquet as a gesture of gratitude. We welcome you all. Thank you so much. It is now my privilege to invite Professor Sanjeev Bhanawat, editor of Communication Today Journal, retired head of Center for Mass Communication, University of Rajasthan, and chief patron of the conference, to present the theme and set the context for today's discussion. Sir, you are not audible. सर आप म्यूटेड हैं। बहुत बहुत आभार बबीता। और आज के हमारे ये जो फर्स्ट पैनल डिस्कशन है, इसके हमारे तीनों एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर सोनल पंड्या जी, प्रोफेसर आयशा जी और सुजाता जी। वंदना जी अभी आ नहीं पाई हैं, उनके यहाँ अचानक कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग थी, तो हो सकता है वो लास्ट में ज्वाइन करें। संयोग से तीनों ही एक्सपर्ट्स के साथ मेरा परिचय लंबा है। सुजाता जी से अभी जालंधर में मुलाकात हुई थी। बहुत लंबा अनुभव आपका मीडिया के क्षेत्र में, एंकरिंग के क्षेत्र में। और सोनल जी के साथ तो मेरे ख्याल कई दशक हो गए, इनके कई आयोजनों में साथ साथ भाग लेने का मौका मिला। और सिलचर तो एक समय मेरा सेकंड होम था, और आयशा जी से कई बार मिलना जुलना हुआ रहा। आज का जो विषय है, मुझे लगता है कि आप सभी ने इस विषय को बहुत गहराई से देखा, समझा, महसूस किया है, और निश्चित रूप से अलग अलग मंचों पर इसको लेकर के बात की है। आज के इस दौर में जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो दुनिया का हर सिस्टम है, विशेषकर मीडिया सिस्टम की यदि बात करें, तो महिलाओं की विजिबिलिटी निश्चित रूप से बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनौती हमारे सामने यह है कि जिस तरह से उनकी दृश्यता या विजिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन क्या उनका रिप्रेजेंटेशन भी उसी तरह से, विशेषकर डिसीजन मेकिंग की जो पोजीशंस हैं, वहां पर क्या उनकी अभी भी कोई महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है? स्क्रीन पर तो दिखाया जा रहा है, लेकिन जो फैसले लेने होते हैं न्यूज रूम में, क्या जो लीडरशिप है उसमें कहीं इनकी किसी प्रकार की भूमिका है? वैश्विक रिपोर्ट्स के हिसाब से जो लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री में संख्यात्मक विकास तो हुआ है, लेकिन शीर्ष पदों पर उनकी मौजूदगी अभी भी तुलनात्मक दृष्टि से लिमिटेड है, सीमित है। तो हमें उस अंतर को समझना है और उसको कम करने के रास्ते क्या हो सकते हैं, उस पर कहीं चर्चा मुझे लगता है की जानी चाहिए। फिर बात आती है इक्विटी और इक्वलिटी की। इक्वलिटी की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इक्विटी भी उतनी ही आवश्यक है। इक्वलिटी सबको बराबर मौका दो। इक्विटी जैसा अवसर है, रिसोर्सेज हैं, उसके अनुसार उनकी जरूरत के अनुरूप हम उन्हें अवसर देने की कोशिश करें। बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे अवसर हैं, समृद्ध हैं, सशक्त हैं, उनको शायद अवसरों की उस तरह से आवश्यकता कम है। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें हमें और अधिक अवसर देने होंगे, उनकी परिस्थिति के अनुरूप, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप। तो इक्विटी का जो अभिप्राय मैंने लिया है, हर व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों, जरूरत और चुनौतियों के अनुसार उचित और न्यायपूर्ण अवसर देने की ओर हम आगे बढ़े। महिलाओं को बराबरी की जगह देने में उनकी किस तरह का एक जस्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए हो सकता है, सुरक्षित कार्यस्थल हो सकता है, और जेंडर सेंसिटिविटी पॉलिसीज किस तरह से हो सकती हैं मीडिया हाउसेज में, कंट्री के जो अलग अलग और हमारी पॉलिसीज हैं उनमें किस तरह से इस तरह की व्यवस्था की गई है। पिछले सत्र में बात कर रहा था, जो यूएनओ की ही एक संस्था है, यूएन विमेन, उन्होंने बाकायदा भी आह्वान किया है कि जो महिलाओं के खिलाफ डिजिटल हिंसा हो रही है, 16 दिन का पूरा एक अभियान इन्होंने चलाया है। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा, इस हैशटैग को लेकर के आंदोलन किए जा रहे हैं। और ये 16 दिन भी चुने हैं, एक विशेष कहना चाहिए कि उसकी एक पृष्ठभूमि है। 24 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा विरोधी जो दिवस है, उस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और 10 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये जो अवधि है 24 नवंबर से 10 दिसंबर की, इस अवधि के अंदर एक वैश्विक एक व्यू रचना तैयार की जा रही है कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ डिजिटल हिंसा को रोका जाए।
डिजिटल हिंसा शारीरिक आघात तो है ही है, लेकिन किस तरह से ट्रोलिंग हो रही है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किस तरह से उनको एक तरह से फोटोग्राफ्स या उनके डीप फेक वीडियोस बना करके किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से, बहुत सारे उसके रूप हो सकते हैं, उसको लेकर के भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं उसका अंत किया जाए। और पिछले दिनों में जो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है, आज राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन अखबारों में पढ़ा कि किस तरह से बच्चों को रोकने की बात है। कल सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की है। अब कितना प्रभावी होगा ये बात की बात है, लेकिन एक ऐसी संस्था बनाने की बात की है जो इन सारे चीजों पर कहीं एक पहले चरण में देखे, समझे, महसूस करे। क्योंकि आपने कुछ सेकंड्स की कोई जानकारी देकर के किसी व्यक्ति का चरित्र हनन किया है, जब तक सोशल मीडिया कंपनीज उनको हटाएंगी तब तक 24 घंटे निकल जाते हैं। तो आपकी कुछ सेकंड की कार्रवाई उसके लिए कितनी घातक हो सकती है। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बात कही है। महिला मुद्दों को सॉफ्ट स्टोरीज के रूप में दिखाया जा रहा है, या उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी जो आशा आकांक्षाएं हैं, उनका उसको उनकी उस दृष्टि को कितना हम इनमें स्थान दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने निश्चित रूप से महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया है। कई बार मैं कहता हूं कि सुदूर दूर अंचल में बैठी हुई कोई एक नवयुवती जो शायद कल तक अपनी बात नहीं कर पा रही थी, आज उसके हाथ में एक ऐसा मंच आया है जहां पर वो पूरी सशक्तता के साथ, खुलेपन से, पूरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर अपनी बात कह सकने के लिए सक्षम है। अपने संघर्ष को वो दुनिया के साथ साझा कर सकने में सक्षम है। पॉडकास्ट की एक नई पीढ़ी हमारे सामने आ रही है। अपने शब्दों को, अपनी आवाज को, अपने कौशल को, वो पारंपरिक मीडिया की जो लिमिटेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं वो चुनौतियां दे रही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, ये भी इसके साथ खतरे बन करके आए हैं। तो ग्लोबल मीडिया का जिस तरह से ये सारा फेस बदल रहा है, मीडिया केवल खबरें दिखाने का माध्यम मात्र नहीं रहे, बल्कि सहानुभूति, न्याय और समानता के नए मानक भी उसे तैयार करने होंगे। इस बदलते हुए चेहरे को, मीडिया का जो चेहरा बदल रहा है, इसे समझने के लिए मुझे लगता है आज की ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करेंगे, इस पर विचार मंथन करेंगे कि मीडिया में महिलाओं की आवाज कहाँ है, किस तरह से उस इक्विटी को सुनिश्चित किया जाए, मीडिया का चेहरा वास्तव में कितना बदला है और कितना बदलना बाकी है, और भविष्य की मीडिया की दुनिया कैसी होगी जहां महिलाएं स्वयं निर्णय स्थलों पर होंगी या निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होगा। उम्मीद है कि ये चर्चा एक संवेदनशीलता के साथ और एक ज्ञानवर्धक दृष्टि कहीं हमारे सामने लेकर के आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच हमारे पैनलिस्ट है इनको देता हूँ, या बबीता जैसे भी इसको आगे संचालित करेंगी। थैंक यू सर, ऑलवेज अ ट्रीट। आपको सुनना हमेशा बहुत अच्छा होता है, बहुत इंसाइटफुल होता है। So, as I said, let's invite our first speaker, Ms. Sujata Parasha, ma'am, who's also a moderator. And the stage is all yours, ma'am. Please take over. थैंक यू सो मच बबीता। और प्रोफेसर बनावट ने पहले ही बहुत ही अच्छे से सम अप कर दिया है, और मुझे लगता है कि हम शायद आपसे बेहतर तो नहीं बोल सकते इस विषय पर, लेकिन शुरुआत वहीं से होनी चाहिए ये, क्योंकि हम फील्ड में आ जाता है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से हमारा दिमाग तैयार किया जाता है, जिस तरह की हमारी सोच तैयार की जाती है, जड़ वहीं पर है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और नमस्कार। और प्रोफेसर बनावट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल होने का मौका दिया। और जैसा कि आपने विस्तार से बताया है कि जो आज का हमारा विषय है, कि और ये जो विषय है ये सिर्फ कोई मीडिया वाली की चर्चा नहीं है, ये कोई सिर्फ एकेडमिक चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे मीडिया के और समाज के भविष्य को लेकर है। विमेन इक्विटी एंड वॉइस, द चेंजिंग फेस ऑफ ग्लोबल मीडिया। यानी जिस तरह से आपने बहुत डिटेल में बताया कि महिलाएं समानता है और हिस्सेदारी है, आवाज भी है, लेकिन जिस तरह से स्वरूप बदल रहा है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना बढ़ा है, उनकी आवाज कितनी बढ़ी है। और हम पूरे, सिर्फ हम मीडिया की बात नहीं, हम पूरे समाज के संरचना के बारे में और हमारी जो सामूहिक चेतना है उसको प्रभावित करने वाली बात होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मीडिया भी तो समाज का ही हिस्सा है, और वैश्विक मीडिया आज इस मोड़ पर है
हम देख रहे हैं तकनीक बदल रही है, न्यूज रूम बदल रहे हैं, दर्शक बदल रहे हैं, और इन सबके बीच एक उभरती हुई आवाज भी है महिलाओं की भूमिका को लेकर। उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, उनकी आवाज बढ़ रही है, और किसी भी जगह की तरह ये माना जाता था कि मीडिया भी मतलब पुरुष प्रधान है, जहां सब फैसले वो लेते हैं और वो तय करते हैं कि स्टोरीज कौन सी जाएंगी, वो दिशा तय करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ बदलाव आया है, थोड़ा ट्विस्ट आया है, और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। जब हम ग्लोबल मीडिया की बात करते हैं तो हमें ये भी मानना होगा कि पिछले 2 दशकों में, खासतौर पर जब से मीडिया, प्राइवेट मीडिया की शुरुआत हुई है, तो बहुत कुछ बदला है। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, उनकी जो आवाज है वो बढ़ी है। अब सिर्फ न्यूज एंकर्स नहीं है, सिर्फ न्यूज पढ़ने वाली नहीं है महिलाएं, बल्कि वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, पॉलिसी मेकर्स हैं, कई अलग अलग रोल जो हैं वो उन्हें मिले हैं। और खासतौर पर अगर हम डिजिटल एज की बात करें तो उसने इस बदलाव को और स्पीड अप कर दिया है। लेकिन ये सडनली नहीं हुआ है कि सडनली लोगों को लगा कि अच्छा औरतों को शामिल कर लो, बल्कि एक कंसिस्टेंट इसके लिए संघर्ष किया गया, लगातार आवाज उठाई गई, मेहनत की गई, उसके बाद ऐसा हुआ है। लेकिन चुनौतियां अभी बहुत सारी हैं। चुनौतियां क्या है कि अब महिलाएं पत्रकारिता के, जर्नलिज्म के हर सेक्टर में, हर सेक्शन में हैं। वो रिपोर्टिंग भी करती हैं, वो फीचर्स करती हैं, वो डिजिटल कंटेंट क्रिएट करती हैं, एंकरिंग तो वो कर ही रही हैं, वॉर रिपोर्ट जो है वो भी कर रही हैं। सवाल फिर, जैसा सर ने शुरुआत की थी, कि रिप्रेजेंटेशन की ही बात नहीं है, बल्कि बात है भागीदारी की, हिस्सेदारी की। क्या महिलाओं को वही अवसर मिल रहे हैं जो पुरुषों को मिल रहे हैं? क्या वही सुरक्षा उन्हें मिल रही है? क्या वही वेतन मिल रहा है? क्या वो सम्मान मिल रहा है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो जिस तरह की आवाजें महिलाएं उठाना चाहती हैं, क्या वो सुनी जा रही हैं? उनको ये मौका दिया जा रहा है, वो स्पेस दिया जा रहा है? या फिर जिस तरह से हर बार ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए एक अलग से सेगमेंट होना चाहिए, या फिर जो आम भाषा में लोग कहते हैं कि महिला मोर्चा। अगर आपने कोई महिला की बात कही, इसका मतलब आपने कोई महिला मोर्चा उठा लिया। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात देखें तो फर्क साफ तौर पर है, जैसा कि प्रोफेसर बनावट ने शुरुआत में ही कहा कि महिलाएं आपको बड़ी संख्या में नजर तो आती हैं, टीवी पर नजर आती हैं, लेकिन क्या वो फैसले लेने वाली जगह पर हैं? क्या वो जो पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष पर बैठे हैं, क्या वहां पर हैं? इम्बैलेंस क्या है? अब इक्वल पे और इक्वल काम की बात जो हो रही है वो पूरी दुनिया में हो रही है, और ये कड़वी सच्चाई है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि हर जगह है। और ये मीडिया में भी ऐसा ही है, समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है। टीवी पर न्यूज रीडर्स आपको बहुत महिलाएं नजर आती हैं, और लोगों को लगता है कि, कई बार मैंने भी सुना है, बहुत सारे जो मेल हैं वो शिकायत भी करते हैं कि महिलाएं तो बहुत सारी हैं, देखिए न्यूज एंकर्स बहुत सारी हैं जो महिलाएं हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जो हाईएस्ट पेड एंकर हो वो महिला है? आप किसी भी दौर में उठा लीजिए, आपको कोई ना कोई मेल एंकर ही मिलेगा जो कि हाईएस्ट पेड है। इसके अलावा अगर हम स्टोरी सिलेक्शन की बात करते हैं, उसमें भी महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उनका एक अलग सेगमेंट होता है, मतलब वो अलग तरीके से किया जाता है। स्टीरियोटाइपिंग होती है कि महिलाओं से जुड़ी बात है तो उसमें अलग सा सैड म्यूजिक लगा दो, या तो उनको देवी बना दो। ये 2 तरह की चीजें होती हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी जैसे हम बिहार चुनाव की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन अंत में ये हुआ कि क्योंकि महिलाओं को पैसे दिए गए रोजगार के नाम पर या किसी के भी नाम पर, और इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ वही काफी था? क्या जो रोजगार का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, क्या वो महिलाओं का मुद्दा नहीं है? क्या वो सिर्फ लड़कों का, पुरुषों का ही मुद्दा था, और औरतों को बस ये चाहिए था कि उनको थोड़े से पैसे उनके अकाउंट में दे दो, कभी दीदी के नाम पर, कभी बहन के नाम पर, कभी माता के नाम पर? तो क्या वो बस उतना ही काफी है उनके लिए? क्या मीडिया ने उनको जागरूक करने की कोशिश की? हम उस चीज को सेलिब्रेट करने लगे कि अच्छा महिलाओं को पैसे मिले, हमने देखा कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। अच्छी बात है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन क्या हम उनको एजुकेट कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं, आप लोकतंत्र को मजबूत करने का एक हिस्सा है। आप सिर्फ इस्तेमाल ना होइए कि आपको संख्या के रूप में कोई इस्तेमाल कर रहा है, कि आपकी जरूरत इतनी कम है कि आपको 5 साल में एक बार
2,000 रुपए प्रति महीने का वादा कर दिया जाए या इस तरह की रकम दे दी जाए और आप मुरीद हो गई और आपने वोट दे दिया। आपकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। आप यहाँ भी मीडिया में संख्या बढ़ी है, लेकिन क्या वेटेज बढ़ा है? वेटेज की बात हो रही है। और अगर हम मीडिया में काम करने वाली महिलाओं की बात करें तो मैंने भी अगर मतलब मैंने जब मीडिया में मेरी एंट्री नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने देखा था बहुत ही था, लाइफस्टाइल कर लो, फैशन कर लो, ये तमाम चीजें कर ली। लेकिन आज बदला है। आज व्यवस्था में खेल में, राजनीति में, हर जगह आपको महिलाएं जो हैं वो रिपोर्टर के तौर पर नजर आ जाएंगी। और युद्ध में अगर हम देखें, वॉर रिपोर्टिंग भी जो है महिलाएं करने लगी हैं। हर तरह की सच्चाई जो है वो महिलाएं दिखाने की कोशिश कर रही हैं। महिला पत्रकार सिर्फ महिलाओं की नहीं, यहाँ प्रतिनिधित्व की भी बात हो रही है कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि समाज में जो भी हो रहा हो, हर क्षेत्र की, हर सेक्टर की आवाज पहुंचाने का काम करती हैं। उसमें संतुलन भी होता है और उसको सेंसिटिव तरीके से वो पेश करती हैं। और अब जो दौर है सोशल मीडिया का, जैसा कि सर ने कहा कि वो एक बड़ी ताकत मिली है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक सशक्तिकरण का एक रास्ता खोला है, लेकिन उसके अपने खतरे भी हैं। डिजिटल दौर में महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पर महिलाएं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मतलब अगर आपको बाहर नहीं जा पा रही हैं तब भी आप अपनी स्टोरीज बता सकती हैं, अपनी राय लिख सकती हैं, किसी भी मुद्दे पर आप खुलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आपके पास प्लेटफॉर्म है। तो सोशल मीडिया ने आपको वो मौका दे दिया है कि आप अपनी बात सीधे लोगों से कह सके, चाहे आपका जो भी तरीका हो। और उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस जगह से होना चाहिए। आपके पास इंटरनेट है तो वो जो ट्रेडिशनल गेट कीपर्स है उनकी आवाज वो रास्ते से हट गए हैं। ये नई आजादी है, लेकिन अब की इसकी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ट्रोलिंग होती है, ऑनलाइन हेट है, वायलेंस है, जेंडर बाइस्ड है, साइलेंसिंग की जो कोशिश है वो भी बढ़ गई है। और महिला पत्रकारों को खास तौर पर, मतलब अगर आप एक तरह की राय रखते हैं तो दूसरी तरह की जो राय वाले लोग हैं वो आपको धमकाने आ जाते हैं, डराने आ जाते हैं, और फिर आपके खिलाफ तरह तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं। उसमें फिर आपकी पर्सनल लाइफ को अटैक किया जाता है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। मतलब जो पुरुषों, जाहिर तौर पर पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, मैं कहूंगी कि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। देखा है कि किस तरह से उनको मैसेजेस किए जाते हैं, उनके परिवार को लेकर धमकाया जाता है। हाल ही में आपको याद होगा, एक महिला पत्रकार है, बड़ी एंकर है, वो बहुत जानी पहचानी एंकर है, लेकिन उनको भी हर बार कभी उनके पति के नाम पर, कभी उनकी पर्सनल लाइफ के नाम पर, कभी कोई फोटो, कोई वीडियो लेकर तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने उस बात की कंप्लेन भी की है। तो इस तरह की हेट कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। और सर ने जैसा कहा, डीप फेक हो या आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसको सालों तक भुनाते रहेंगे, और फिर क्योंकि आप एक महिला हैं तो वो उस तरीके से आपके साथ जोड़े जाते हैं। अब सवाल यह है कि आगे हम कैसे इसको सुधार कर सकते हैं। जो वरिष्ठ लोग हैं वो जाहिर तौर पर बताएंगे कि नीतिगत बदलाव जो है बहुत जरूरी है। जेंडर इक्वालिटी के लिए नीतियां साफ होनी चाहिए, सिर्फ कागज पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो कागज पर तो है, लेकिन कभी लागू किया गया है क्या? वैसे नए लेबर लॉज भी आए हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्यादातर कानूनों का पालन नहीं करती हैं। मतलब दूसरी जगह मैंने देखा है, दूसरे सेक्टर्स में शायद सख्ती से लागू होते हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं को जो करियर है वो पुरुषों के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा होता है। आप किसी भी न्यूज रूम में जाइए और आप जरा नजर दौड़ाइए कि आपको कितनी महिलाएं वहां नजर आ रही हैं। और खास तौर पर एक एज कैटेगरी, अगर हम 40 साल उम्र देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आप किसी न्यूज रूम में जाएं, जरा नजर दौड़ा कर देखिए कि आपको कितनी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो, वो आपको न्यूज रूम में नजर आ रही हैं। इसलिए मैंने कंपेयर करके देखा कि करियर जो है वो महिलाओं का छोटा होता है। गिनती भर से आप देखेंगे कुछ ही ऐसी महिलाएं होंगी जो 40 साल की ज्यादा उम्र की हों, जो अभी भी एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। ज्यादातर को फील्ड चेंज करना पड़ जाता है, वो जॉब छोड़ देती हैं या कुछ और करने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो थक गई हैं, बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक है या वो थक गई हैं, बल्कि उनको ऊपर से एहसास कराया जाता है कि एज की बात कही जाती है, क्योंकि
शुरू से आपने माना है कि अगर महिला इस फील्ड में है तो वो फ्रेश चेहरा होना चाहिए, चेहरे की ही बात होनी चाहिए। वैसे हालात बहुत बदले हैं, हमने देखा है कि प्राइम टाइम में जो सीरियस डिबेट्स हैं उसमें महिलाओं को चर्चा करने का मौका मिल रहा है, बड़ी बड़ी एंकर्स भी हैं। प्रेजुडिस जो है वो बहुत हद तक खत्म हुआ है, पूर्वाग्रह खत्म हुए हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि शुरुआत में किस किस तरह की बातें देखी और किस तरह की रोक थी। ये कहा जाता था कि जो महिलाएं हैं वो महिलाओं की आवाज उठाएंगी, महिलाओं को कुछ खास विषय दे दिए जाते थे कि आप ये करेंगी, या महिलाओं का अगर मुद्दा होगा तो ठीक है महिलाएं बात करेंगी। वैसे यहाँ प्रोफेसर बनावट भी है, लेकिन बाकी जो इस विषय पर बोलने के लिए यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो भी महिलाएं ही हैं। तो यहाँ पर मैं ये हमें नॉर्मलाइज करना होगा, हमें ये देखना होगा कि किसी महिला की बात करने के लिए या महिलाओं की बात करने के लिए सिर्फ महिलाओं की जरूरत नहीं है। और जब तक हम ये कैटेगरी बांटते रहेंगे तब तक हम इस चीज को नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा ही हो गया कि अगर फेमिनिस्ट होने के लिए आपको महिला होना जरूरी है। तो एक तो ये है कि हमें सबसे पहले नॉर्मल करना होगा, और यहीं से होता है। तो अगर हमारे इस पैनल में पुरुष भी होते हैं जो महिलाओं की मौजूदगी के बारे में, उनकी हिस्सेदारी, उनकी बराबरी के बारे में बात करते हैं तो हम और अच्छा करते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल जो हाल में ही है, जैसे कि बीसीसीआई ने, जो क्रिकेट बोर्ड है भारत का, उसने महिलाओं को भी सेम फीस देना शुरू किया। मतलब मैच फीस जो होती है हर मैच खेलने के लिए, जो पैसे दिए जाते हैं पुरुषों को या महिलाओं को, अब वो बराबर हो गया है। फिर हमने देखा कि उसको अब उसके लिए बहुत अच्छी ब्रांडिंग की गई, तो उसका फायदा मिला। बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट लिया इस बार का जो विमेंस वर्ल्ड कप था, उसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने उसको टीवी पर देखा, उसकी बहुत हाइप थी, ग्राउंड में भी फुल हाउस था, मतलब स्टेडियम पूरा भरा हुआ था विमेंस वर्ल्ड कप के लिए। इतना क्रेज कभी नहीं देखा गया। हर खिलाड़ी के बारे में आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनको क्यूरियोसिटी है, उनके खेल के बारे में देखते हैं। ये एक उदाहरण है, जैसे कोई लड़का अपने स्किल से अपना खेल दिखाता है, वैसे ही कोई लड़की भी ऐसा कर सकती है। वो उसका इंडिविजुअल टैलेंट है, उसका जेंडर नहीं है। अगर उसमें स्किल है, वो टैलेंट है, तो हमें उसी पर ध्यान देने की जरूरत है एक खिलाड़ी के तौर पर। ये नहीं कि वो एक मेल खिलाड़ी है कि फीमेल खिलाड़ी है। तो एक ये एग्जाम्पल है जो सेट किया गया है कि आप अगर इक्वल मौका देते हैं, जैसा कि प्रोफेसर बनावट ने शुरुआत में कही थी कि क्या हम अलग अलग परिप्रेक्ष्यों के हिसाब से हिस्सेदारी देते हैं, मौका देते हैं। अब महिलाएं, वो महिला भी क्रिकेट ही खेल रही है, वही गेम खेल रही है जो इस देश में धर्म की तरह है, लेकिन उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म दिया गया, उस तरह के मौके दिए गए, क्या उस तरह से पुश किया गया? आपको पता है हर चीज के लिए ब्रांडिंग की, प्रचार की जरूरत होती है। जब मिला तो आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अगर हम स्ट्रीमिंग की बात करें, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए महिला वर्ल्ड कप के फाइनल ने। आपने मौका दिया, लोगों ने उसको देखा, और आज उनको सब पहचान रहे हैं। और इसीलिए फिर हम आते हैं एकेडमिक्स पर कि मेंटरशिप और प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। जो युवा महिला पत्रकार हैं, मुझे लगता है दोनों को ही, महिलाओं पत्रकारों को भी और पुरुष पत्रकारों को भी मार्गदर्शन देना भी जरूरी है। कौशल विकास के मौके बढ़ाने होंगे, उनको ट्रेन करना होगा कि आप जो आपकी कलीग्स हैं, मतलब जो आपकी फीमेल कलीग्स हैं, आप उनको इस तरीके से ना देखें कि वो महिला है इसीलिए। क्योंकि इस तरह की बातें होती हैं कि अच्छा महिलाएं हैं तो इसका मतलब उनको तो सिर्फ सुंदर दिखना है, मेकअप लगाना है और उनको मौका मिल जाएगा। तो पहली बात तो ऐसे मौका मिलता नहीं है, और ऐसा मौका चाहिए भी नहीं। हमें मौका चाहिए हमारे स्किल के आधार पर, जेंडर के आधार पर नहीं। अब जब हम हैरेसमेंट की बात करते हैं तो एक तो ऑनलाइन भी है, जो एक आजादी भी है लेकिन वो खतरा भी है। उसके अलावा किस तरह की परेशानियां हैं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिसकी हमने बात की कि एक तरफ ऑनलाइन है और एक तरफ ऑफलाइन है। किस तरह के कैंपेन ऑनलाइन चलते हैं वो हमने देखे हैं, कैसे कैसे नाम देकर, कैसे कैसे हैशटैग चलाए जाते हैं महिला पत्रकारों के खिलाफ, ये भी हमने देखा है। किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, पर्सनल लाइफ को टारगेट किया जाता है, किस तरह से उन्हें परेशान किया जाता है, ये हमने सब देखा है। आप एक तरह से ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। तो जरूरत यह है कि एक सुरक्षित वातावरण मिले, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं
अपनी आवाज को बिना डरे, मतलब उसका रेप्लिकेशन क्या होगा वो सोचे बिना वो अपनी बात कह सके। लेबर लॉज आए हैं, महिलाओं को रात में काम करने की इजाजत मिली है, लेकिन मीडिया में ऐसा महिलाएं बहुत पहले से कर रही हैं। लेकिन क्या सुरक्षा की सख्ती का पालन होता है, क्या नियमों का पालन होता है? सब जगह नहीं होता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही। इसके अलावा महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, चाहे पॉश की बात हो या विशाखा गाइडलाइंस की बात हो, कितने ऑर्गेनाइजेशन उसको सख्ती से पालन करते हैं? कितने ऑफिस में ये कमेटियां हैं जहां बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में अगर ज्यादा पुरुष होते हैं तो उनमें प्रेजुडिस है, उनको ये लगता है कि महिलाएं सिर्फ गलत इस्तेमाल करती हैं कानूनों का, और इसीलिए माहौल बनाया जाता है कि उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। और क्योंकि मीडिया बहुत ही क्लोज नेटेड सोसाइटी है, अगर एक महिला ने कहीं कंप्लेन की तो वो खबर जो है वो पूरे मीडिया में फैल जाती है, और ये इस तरह से पोस्ट किया जाता है कि ये जो महिला है दरअसल ये प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, क्लोज नेटेड है, तो उस महिला को मन में रहता है कि मैंने यहाँ आज किसी की कंप्लेन की है तो मुझे प्रॉब्लमेटिक टैग कर दिया जाएगा और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरी जगह जॉब लेना। और इसीलिए बहुत मामलों में महिलाएं कंप्लेन नहीं कर पाती हैं कि उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए पहले तो वो माहौल देने की भी जरूरत है, और वो कब होगा? जब डिसीजन मेकिंग में ज्यादा महिलाएं होंगी। इसके अलावा जो हमारी दर्शक हैं, रीडर हैं, उनमें हमें सबकी आवाज सुननी होगी। हमें पुख्ता करना होगा कि अलग अलग बैकग्राउंड की जो महिलाएं हैं, चाहे वो शहरी महिलाएं हो, एलिट हो, या फिर मजदूर महिलाएं हो, ग्रामीण महिलाएं हो, सबकी आवाज हमें पहुंचानी होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। इंक्लूजन की जरूरत है, प्लुरलिटी और समावेशी जो है, इस विभिन्नताओं के बीच इस तरह की नीतियां लानी होंगी जिससे मीडिया जवाबदेह बने कि हमें सबको शामिल करना है, इंक्लूजन लाना है। अंत में यही कि वैश्विक मीडिया का जो ये बदलता चेहरा है, इसमें बदलाव तो आए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ अधूरा है। महिलाओं को समान अवसर, समान वेतन, समान सम्मान नहीं मिला है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये भी हमें याद रखना होगा कि जब हम महिलाओं की आवाज को मजबूत करते हैं जो मीडिया से जुड़ी हुई है, तो सिर्फ हम मीडिया की बात नहीं करते हैं। मीडिया बदलेगा तो समाज की आवाज बदलेगी और बेहतर दिशा में हम इस समाज को ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि जब महिलाएं बोलती हैं तो वो एक अलग सेंसिटिविटी से खबरों को देखती हैं, बहुत सारी ऐसी अनकही कहानियां सुनाती हैं। और ये बदलाव कैसे आएगा? सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन। महिलाओं को सिर्फ चेहरा नहीं चाहिए बल्कि एक निर्णायक भूमिका चाहिए जहां वो भी फैसले ले सकती हैं। समान अवसर, हिस्सेदारी, समान वेतन, समान सुरक्षा और समान विकास का मौका मिलना चाहिए। ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहां महिलाएं बिना डर के, बिना किसी प्रेजुडिस के और बिना किसी सेंसर के बोल सकें। ये भी बात है कि ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की विकास की बात है। हमारी कोशिश होनी चाहिए मीडिया एक ऐसे परिदृश्य का निर्माण करना जो सच में समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, रिप्रेजेंटेशन जिसमें हो। हमें एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां पर महिलाओं की राय उनका जेंडर देखकर नहीं बल्कि वो क्या कह रही हैं उस सोच पर, उस विचार को देखकर हमें ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। और जी, मेरे ख्याल सोनल जी को अपन बुला लेते हैं पहले। हाँ सोनल जी। वो जो हाँ, मैं 1 मिनट थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। आपकी ये जो चिंता पीड़ा जो भी कहूँ वो स्वाभाविक है कि तीनों महिलाएं, चारों महिलाएं हैं। ये बात मेरे दिमाग में थी, लेकिन हुआ क्या कि जो और सेशन थे वो सारे मेल डोमिनेटेड थे, चाहे इनॉग्रल, उसके बाद चारों सेशंस। तो फिर मुझे लगा कि अब मना करके फिर चेंज करना ठीक नहीं है ना। लेकिन ये है कि ग्रुप में बहुत सारे मेल मेंबर्स हैं और समय मिला यदि डिस्कशन के लिए तो मुझे लगता है कि अच्छा पार्टिसिपेशन होगा। और इनॉग्रल में संख्या 30 के ऊपर नहीं पहुंची और अभी 38 दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब इन मुद्दों पर समाज सजग है और सुनना चाहता है। तीसरी बात, ये हमने जो गूगल फॉर्म बनाया था उसमें जो रजिस्ट्रेशन आए
वो आज का मुझे कल बता रही थी कि 65% है उसमें फीमेल्स के पेपर इसमें आए हैं। उसमें फिर वो डॉक्टर जिनके आगे लगा उनको अलग लिया, मेरे ख्याल उसमें भी महिलाएं होंगी, तो करीब करीब 70% कंट्रीब्यूशन इस पूरी कॉन्फ्रेंस में महिलाओं का है ना। तो ये तो है कि महिलाएं आगे आ रही है और अपने अधिकारों को और उसको लेके सजग सतर्क है। ये राइटर्स रिजर्वियर जो उन्होंने थिंक टैंक बनाया है उसमें तो सारी गर्ल्स है, सब लेडीज है। तो मैं तो उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन पुरुषों को भी महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि हम एक जब तक आप सामान्य रूप से नहीं लेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई बार मैं गई हूँ, अब जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि अच्छा आपके ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं की क्या संख्या है, कौन से पदाधिकारी हैं, कौन सी बड़ी बड़ी पोस्ट पर महिलाएं हैं, तो उनके पास जवाब नहीं था। तो क्योंकि थी ही नहीं, बड़ी बड़ी जो सबसे बड़ी पोस्ट है उन पर कभी हुई नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे परंपरा वाली बात सुनाई। उन्होंने बोला आप बराबरी क्यों चाहती हैं, हम आपको देवी मानते हैं, आप पुरुषों से ऊपर हैं, आप कहाँ बराबरी के चक्कर में हैं, बराबर नहीं है आप ऊपर हैं। और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हम बराबर हैं। बिल्कुल आप हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा दिमाग चल रहा है, मतलब हर चीज में नहीं है। आप हमारे साथ बॉक्सिंग करने के लिए मत बोलिए कि चलो बॉक्सिंग कर लेते हैं, बहुत बराबरी है। तो हम दिमागी रूप से सेरेब्रल मतलब जिस मुद्दे पर जिस तरह की बात की जा सके उस पे हम बात करते हैं। और उसमें कोई सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि हमें शक्ति मत बनाओ, हमें व्यक्ति ही रहने दो। वेरी गुड, यही बात है। तो चलिए सोनल जी को सुनते हैं। जी अभी तो मैं गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकती, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बनावत सर हमारे सबके गुरु रह चुके हैं, तो उनके उपस्थिति में मेरे लिए महिलाओं के नहीं किसी भी मुद्दे पर बात करना मैं थोड़ा झिझक महसूस करती हूँ, क्योंकि जिनसे हम सीखे हैं काफी कुछ। मुझे लगता है कि जब वो हमारे साथ है तो एक कॉन्शियस हो जाते हैं। पर I must say thank you to all of you, my panel members. We are meeting in cyberspace. I wish that we can meet personal very soon. But gender and media-related study is not merely my area of expertise, but I have a it's near to my heart, because I firmly believe कि जहाँ महिला या इक्वल नहीं है वो सोसाइटी कभी डेवलप नहीं हो सकती। बिकॉज मैं जेंडर ट्रेनिंग भी करती हूँ, अभी मैंने करीब 40 देशों की महिलाओं को ट्रेन किया कि हाउ द रोल ऑफ पॉलिसी फ्रेमिंग इज इम्पोर्टेंट while and voice of women is very important while we frame the policy. मुझे लगता है कि while we talk about the media and women relationship, मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव चेंज से मैं अपनी शुरुआत करती हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ अ वेरी नोटेबल, क्योंकि पॉजिटिविटी वर्ड आजकल प्रेजिंग के लिए भी यूज होता है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव बात के नाम पे प्रेजिंग नहीं करना चाहती, बट एज एन एकेडमिशियन एंड एज अ रिसर्चर, क्योंकि अभी मेरी एक स्टूडेंट ने थीसिस किया है कि विमेन्स स्पेस इन साइबर स्पेस, विमेन्स फ्रीडम इन सोशल मीडिया के ऊपर उनका काम है। तो मुझे लगता है कि जो नोटेबल थिंग्स है, जो डिजायरेबल चेंजेस जिसको हम बोलते हैं, वो डिजायरेबल चेंजेस मीडिया की वजह से हुआ है। दैट इज वन इज अ रोल मॉडल क्राइसिस, क्योंकि जो पहले था और स्पेशली उसमें रूरल वुमेन और द डोमेस्टिक वर्कर जो वुमेन थी, जो हाउस होल्ड वर्क करती थी, उनको लगता था कि मुझे मेरी सास जैसा बनना है, या यू हैव टू बी लाइक योर मदर और ग्रैंड मदर। मुझे लगता है कि मीडिया ने ये बाउंड्रीज क्रॉस कर दी है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जगहों से भी एक वुमेन वॉइस आपको सुनने को मिलेगा। और ये मीडिया एक्सपोजर की वजह से ये रोल मॉडल जो क्राइसिस थी कि भाई मैं कल्पना चावला भी बन सकती हूँ और मैं क्रिकेट भी खेल सकती हूँ, ये किसी की मोनोपोली नहीं है। और ये एक्सपोजर पहुंचाने में मीडिया का एक वाइटल रोल रहा है, उसको हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा जो चीज है, मुझे लगता है कि जैसे मैडम सुजाता ने बताया, वो पॉलिसी फ्रेमिंग में
सुजाता, मुझे लगता है कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे मीडिया ने डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। मुझे याद है जब 1983 में हमारा अहमदाबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन है आवाज करके, अहमदाबाद विमेन एक्शन ग्रुप, और तभी वो पीसी जोशी कमेटी का रिपोर्ट आया था पोर्ट्रेइंग द विमेन इन मीडिया के ऊपर, एंड एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट के तौर पे आप मीडिया को नहीं दिखा सकते। वो सब एक प्रेशर क्रिएट हुआ और 2005 में हमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मिला। मुझे लगता है कि वो लीगल प्रोसीजर है, पर मीडिया ने एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि भारत में जहां हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम के सामने हम अपने घर वालों के सामने भी लीगल सपोर्ट ले सके, ऐसा एक लॉ को इम्प्लीमेंट करना, नहीं कि आपके भाई पापा या आपके जो भी घर वाले हैं वो आपको, अगर, क्योंकि जब विमेन और विमेन स्टेटस की बात करते हो हमें जानते हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस कम है, इंटरनल ज्यादा है। जब इक्विटी और इक्वालिटी की बात करते हैं, एडवर्स सेक्स रेशियो में कौन बाहर से फोर्सेस है? पेरेंट्स करते हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि मीडिया ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक लॉ, लीगल प्रोविजन है। तीसरी जो बात मुझे अभी अभी मैंने नोटिस की है कि हम जो स्टीरियोटाइप रोल जो हम बोलते थे, स्पेशली हमारे बच्चे जब यहाँ पढ़ने आते हैं सुजाता, तो वो बोलते हैं कि मेरी मम्मी खाली हाउसवाइफ है। मैं बोलती हूँ मैं वो भरी हाउसवाइफ है, वो खाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुकिंग से लेके चाइल्ड केयर तक जो एक लगता था कि उसमें क्या, अब बच्चे तो कर रही है पैदा और बड़े कर रही है, सदियों से विमेन ये कर रही है, ऐसा नहीं है। उसका एक रिकॉग्निजेशन हुआ है। अगर आप फूड की चैनल्स भी देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी गांव से जो विमेन चूल्हे पे खाना बनाती थी, उसको भी अब फॉलोअर्स मिल रहे हैं और उसको लग रहा है कि मैं जो ट्रेडिशनली कुछ काम कर रही थी उसका एक रिकॉग्निजेशन भी है। तो मुझे लगता है कि ये एक दूसरी बात है। और फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंटली, कि जेंडर इश्यूज आर इश्यूज, नहीं, वो एक बहुत बड़ी बात है कि आपको, वो लोग बोलते हैं कि ये विमेन्स डे सेलिब्रेशन थोड़ा मार्केट ड्रिवन है, थोड़ा मार्केट ड्रिवन ही सही, पर विमेन के मुद्दे जो है वो मुद्दे हैं और उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये 4 नोटिसेबल थिंग्स मैंने एज अ रिसर्चर नोटिस किया है कि जो विमेन की लाइफ को एक पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है मीडिया ने, और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट द रोल ऑफ मीडिया इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट इवन दो मुझे लगता है कि 3 चीज है, व्हाइल वी टॉक अबाउट द जेंडर इन पॉलिसी फ्रेमिंग और मीडिया और जुडिशियरी एग्जीक्यूशन। पहली बात यह है कि don't talk about the women without research, because you can't generalize your own experiences as a truth. And in a country like India, we are living many centuries together. So while we talk about the women, which women we are talking about, मुझे लगता है ये बहुत important मुद्दा है, क्योंकि काफी प्रिविलेज क्लास महिलाओं मैंने देखी है वो जेंडर से परे हैं, राइट? और उनको लगता है कि अगर मैं विमेन होके ये कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये पूरी मतलब बेस नहीं है। मैं अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन की ही बात करें तो आप यू कैन सी दैट विच विमेन आर वर्किंग इन मीडिया हाउसेस। वानावत जी साक्षी है सर, हम जब कोल्हापुर में मिले थे और उसी आधार पे मेरा जो कीनोट था तब मैंने बात बताई थी कि गुजराती जर्नलिज्म में जो विमेन है ऑन स्क्रीन, हालांकि नेशनल न्यूज में तो गुजराती, इंग्लिश, हिंदी दोनों में नहीं है, पर फिर भी जो रीजनल मीडिया में महिलाएं हैं वो जनरली मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास से आती हैं और उसमें माइनॉरिटी या इवन ओबीसी रिप्रेजेंटेशन भी नाम का ही है। गुजरात की अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल आप देखें तो वी आर हैविंग 15% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, 10% ऑफ द माइनॉरिटी। तो इन तबकों से महिला ऑन स्क्रीन नहीं आती। वो तो एक दूसरी ही बात है कि वो पॉलिसी फ्रेमिंग में है कि नहीं।
पर आपकी जो मीडिया डिमांड है उसमें विमेन के अगर फेसेस और वॉइसेस आपको सुनाई दे रहे हैं तो वो कौन सी महिला है, वो कहाँ से आती है? वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई जिसके पिता है वो बॉन्डेड लेबर है या एग्रीकल्चर सेक्टर में है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो एरिया की जर्नलिस्ट और स्पेशली महिलाएं आपको ऑन स्क्रीन दिखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अमोंग द विमेन भी एक एलिटिस्ट जो फ्लो है उसके ऊपर भी आज के उसमें काम करने की बहुत जरूरत है। और बिना रिसर्च मुझे लगता है कि हम ये बोले कि अगर हम ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकती। यू कांट जनरलाइज दैट वे, यू नो, टू ब्रेकिंग द सोशल बैरियर इज नॉट दैट इजी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक मुद्दा जो है वो रिसर्च का है। विदाउट रिसर्च व्हाइल वी टॉक अबाउट द जेंडर इन एकेडमिक प्लेटफॉर्म, you shouldn't, and you have to talk which women we are talking about. सेकेंड जो मेरा मुद्दा है वो है एम्पथी। एम्पथी लर्निंग में अगर हायर एजुकेशन में आजकल सबको पता है बहुत ज्यादा काम और सोच विचार हो रहा है, पर फिर भी मुझे लगता है कि हम मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो जो सोशल कल्चरल इश्यूज महिलाएं फेस करती है, हमारे 1 वीक का रूरल इंटर्नशिप है, मैंने कल 3 जगह फोन किया, पेरेंट्स को कन्विंस किया, यू नो, तो हमें लगता है कि वो एम्पथी हम नहीं सोच सकते, राइट। और महिलाओं की जो पूरी लड़ाई है वो नियर डियर के साथ की लड़ाई है, आप हमें ये सोचना ही पड़ेगा। सो अगर मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरी माँ, उसके साथ मुझे ये डायलॉग करना है। और इसीलिए अगर सर हम चेंजिंग रोल की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी विटंबनिया इवन लिटरेट विमेन में है कि जिनके साथ मेरी दिल का रिश्ता है उसके साथ मैं लीगल टर्म में बात कैसे कर सकती। 69 से इक्वल राइट इन द फादर्स प्रॉपर्टी है, 3% महिलाओं को हार्डली उसमें शेयर मिलता है। और मैंने राजस्थान के किन किन गाँव में तो सब देखा है कि वो हक त्याग करती है महिलाएं। तो क्योंकि लगता है कि जिसके साथ हमारा इमोशनल बॉन्ड है उसके साथ हम लीगल फ्रेम में कैसे बात कर सकते हैं। तो हमें लगता है पर ये आसान नहीं है। तो एम्पैथी के साथ हमें विमेन लेंसेस से, विमेन कॉन्टेक्स्ट में सोचना, विचार करना होगा। ये एक दूसरा पॉइंट है। और तीसरी जो चीज है, मुझे लगता है कि व्हाइल वी टॉक अबाउट द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया, मुझे लगता है होलिस्टिक अप्रोच से उसमें आगे जाना पड़ेगा। सुजाता राइटली मेंशन दैट व्हाई मेन आर नॉट ओवर हियर और व्हाई, सी मुझे लगता है कि अभी मेंस डे था, आई वाज देयर इन टेलीविजन चैनल डिबेट्स, एंड मैंने तभी बोला कि हम जब जेंडर की बात करते हैं तो सबको लगता है ये सब झंडे वाले बात, उसमें झंडे की कोई बात नहीं है। हम जब विमेन इक्वालिटी की बात करते हो तब मैन आर ऑल्सो सफरिंग। हम बोलते हैं कि विमेन को चॉइसेस नहीं है, तो मैन को कहाँ है? वो बोले कि मुझे नहीं कमाना है, मुझे बच्चे देखना है, पीपल आर मेकिंग मॉकरी। तो हमें ये लगता है कि जब हम पितृसत्ता समाज व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच से देखना पड़ेगा। ये कोई एक जेंडर की कोई राइट प्रोटेक्शन का पूरा मूवमेंट नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इट इज द होलिस्टिक अप्रोच वेयर मैन आर ऑल्सो सफरिंग। सडनली इतना वर्कफोर्स विमेन का सर मार्केट में आ गया है और फिर भी हमें यह है कि लड़का तो कमाता है तो भी हम बेटे देंगे। नहीं हो रही है लड़के की शादी, पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं है। और लड़कियों को भी है कि मैं कमाती हूँ सफिशिएंट नहीं है, मेरे जितना या मेरे से ज्यादा कमाता हुआ लड़का चाहिए। तो ये पूरा एक सिस्टम का सवाल है और ये सिस्टम के सामने की लड़ाई है। उसमें कोई एक जेंडर का राइट प्रोटेक्शन का ये मुद्दा नहीं है। तो मेरी 3 चीज है कि रिसर्च के आधार पर बात हो, एम्पैथी से बात हो और होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये पूरी मुद्दा के ऊपर हम सोचे तो मुझे लगता है कि एक डिजायरेबल आउटकम या कॉन्क्रीट प्लानिंग के साथ मुझे लगता है कि हम जेंडर के दिशा में कुछ प्रदान कर सकते हैं।
फिर भी जब हम एज एन एकेडमिशियन हम जब वुमेन इन मीडिया का रोल क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, तब दो इश्यूज हैं. एक, women representation in media houses, women working in media houses, and secondly, portraying of women in media, in news media, in advertisements, and in entertainment industry. ये दो हिस्सों में मुझे लगता है कि हम women study और मीडिया और जेंडर इन मीडिया के रिलेटेड स्टडी हम कर सकते हैं. उसमें जो पोर्ट्रेइंग ऑफ वुमेन का जो बात है, उसमें 3-4 बात जो है, जैसे सर ने बोला कि साइबर बुलिंग होता है. सर, अनडाउटेडली होता है. हमने एक वर्ड भी कॉइन किया है, दैट इज वेब वल्गारिटी. अब आपको छेड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाए. और वो जो चीज है, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, तो हमें इस हिसाब से भी देखना है कि ये प्रॉब्लम यहाँ है, इसीलिए वो प्रॉब्लम फिर फेसबुक पे आता है या इंस्टा पे आता है, राइट? क्योंकि हमें ये लगता है कि विमेन इज अ टूल टू एंटरटेन योरसेल्फ, यू नो, तो ये यहाँ है इसलिए ऑन स्क्रीन आता है. और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम विमेन पोर्ट्रेल इन सोशल मीडिया और द अदर मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इट लीड्स टू द सोशल चेंज. और कोई भी इकोनॉमिकल चेंज है ना सर, वो फास्ट आ जाता है, पर सोशल चेंज बहुत स्लोली आता है. मैंने 1-2 बार कोट किया है, पर वो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है कि हमारी मम्मी जो है वो चक्की पीसती थी, और अब हम शक्ति भोग आटा लाके चपाती बनाते हैं, पर चपाती तो वुमेन ही बनाती है. और अगर आप एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री की ही बात करें, तो अजय देवगन जो है वो हॉर्स राइडिंग करके अपना टोबैको का प्रोडक्ट बेचता है, और काजल है वो बेचारी डायपर चेंज करती है. तो ये जो चीज है ना कि सिचुएशन हैज बीन चेंज, नॉट द स्टेटस, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि स्टेटस जो चेंज करने की बात है, उसके आधार पर ज्यादा काम करने की जरूरत है. दूसरा, हमारा अभी जो स्टडी हुआ है वो है बॉडी शेमिंग के ऊपर, क्योंकि जब फेयर एंड लवली मार्केट में आई, उसका जब हिडन मैसेज था कि इफ यू आर फेयर एंड देन यू आर लवली, और अनअवॉइडेबल एडजेक्टिव्स है. अगर आप मैट्रिमोनियल की एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देखें या ऑनलाइन देखें, जिसमें फेयरनेस जो है, हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हम ब्राउन स्किन पीपल है तो वी आर ओके विद दैट ब्राउन स्किन. और मैंने देखा है कि जो डार्क कंप्लेक्शन वाली औरतें हैं, इवन पढ़ी लिखी औरतें हैं, वो भी जब ऑन स्क्रीन आती हैं तो वो फिल्टर लगाना पसंद करती हैं, राइट? सो ये एक जो चीज है कि ब्यूटी ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब पहली बार ऐश्वर्या और ये सुष्मिता सेन जब मिस यूनिवर्स एंड वर्ल्ड बने, तब मैंने एक पेपर किया था कि ये इसीलिए ह्यूमन राइट वायोलेशन है कि विथ विच ब्यूटी आई सपोज टू बोर्न, इट्स नॉट इन माई हैंड, राइट? अगर मैं टॉल हूं तो मेरे पेरेंट्स टॉल है, उसमें इट्स अ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी. वो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी को आप स्टैंडर्डाइज करते हो, और अगर आप उस स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठते हो तो आप बोलते हो कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो. तो ये जो मार्केट ड्रिवन ब्यूटी का कंसेप्ट और एथिक अकॉर्डिंग अवर इंडियन जो बिलीफ है, जिसमें आप फेयर हो तो ही ब्यूटीफुल हो, ये दोनों को मुझे लगता है कि मीडिया इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, पर यहाँ मीडिया को मोल्डर बनने की जरूरत है कि आई एम ब्राउन स्किन or the black skin, but I'm okay with my brown complexion, right? I'm not fair, I'm black, but even though I'm beautiful. There is a difference between how you look, how your beauty is, and how your personality is, you know. So I can make my personality, but whatever the beauty character that media is always admiring, it is not my contribution. It is a biological diversity. You standardize that diversity and you are saying whether I am beautiful or not. Another thing that freedom, जो बहुत unnoticed है सर, ये मेरा last point है, फिर मैं conclude करूंगी, जिसके बारे में हम कम
कनेक्टिविटी इशू है शायद। सुजाता जी आपका माइक। प्रोफेसर पांड्या की आवाज नहीं आ रही है, शायद मुझे थोड़ा लग सा रहा है कनेक्शन लूज हो कनेक्टिविटी गया है। गड़बड़ हो गई है। हाँ। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन Yes, yes. हाँ आ Sorry, गई। sorry. यस मैं तो शी सेड दैट मैं 9 बजे मेरे हस्बैंड आने के बाद ही फोन कर सकती। देन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग द डाटा दैट हमारे वहां इनके बारे में बात ही नहीं होती है। हम पॉलिटिकल सेंसरशिप की बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट द सोशल सेंसरशिप दैट वुमेन इज फेसिंग? तो वेर इज द वुमेन स्पेस इन साइबर स्पेस? ये बहुत बड़ा रिसर्च का मुद्दा भी है। और हमारे वहां अभी ऐसा हुआ है कि अनमेच्योर जो लड़कियां हैं वो किसी के साथ शादी करके भाग जा रही है। तो एक पूरा मूवमेंट चल रहा है कि यू शुड टेक द कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स, और उसमें लीगल प्रोविजन डाला जाए। तो मैंने बार बार ये कहा कि उसके लिए ये लीगल प्रोविजन से कुछ नहीं होगा, आपको वुमेन को अवेयर करना पड़ेगा और उनको फोन नहीं देना, क्योंकि फोन से ये जो रिलेशनशिप है और लड़कों के साथ, तो बिफोर मैरिज टीनेज में फोन ले लेना, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर ये मूवमेंट चल रही है। मुझे लगता है कि ये सेंसरशिप महिलाओं के पर डालना ठीक नहीं है। उसके लिए एजुकेशन और एक पूरा माहौल बनाया जाए जहां अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए एक मैच्योरिटी एजुकेशन में उसको डाल दी जाए। दिस इज नॉट द वे दैट यू आर डूइंग द फ्रीडम ले ले आप महिलाओं की या स्पेशली बच्चियों की। और ये बहुत अननोटिस मुद्दा है, पर मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी राइट प्लेटफॉर्म to highlight the issue of the social censorship. And last but not least, मुझे लगता है कि सर ये पूरी जो लड़ाई है ना, वो डिफरेंसेस सेलिब्रेशन की लड़ाई है। जैसे मैडम ने किया कि वी डोंट वांट टू बी लाइक मैन, बट इवन दो वी वांट टू, सो वी आर डिफरेंट एंड वी वांट टू सेलिब्रेट दैट डिफरेंस। मुझे लगता है कि इक्विटी एंड इक्वालिटी की जो पूरी लड़ाई है, और हमारी जो किताब है कि वर्ल्ड इज फ्लैट, जाने माने पत्रकार ने ही लिखी है, वर्ल्ड इज फ्लैट बट इट्स सपोज टू बी मोर लिवेबल, इक्विटेबल एंड ब्यूटीफुल। एंड अगर वो इक्विटेबल नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो ब्यूटीफुल भी नहीं लगेगा। वर्ल्ड इज स्मॉल, व्हाई शी एंड व्हाई ही इज ही, व्हाई वी आर नॉट वी। तो मुझे लगता है ये जो लड़ाई है वो वी को साथ में रखने की है और डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करने की है। With this remark, I am concluding my presentation. Thank you so much for this opportunity. थैंक यू सो मच। और बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही है कि सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, लेकिन वो भूमिकाएं जेंडर से तय नहीं होनी चाहिए। जहां जिसकी जरूरत हो उस हिसाब से वो अपनी भूमिका बदल सकते हैं, वो काम बदल सकते हैं। और मैं थोड़ा सा उन चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगी जो आपने मेंशन किया है। फेयर एंड लवली इज नाउ फेयर एंड ग्लो। ओके सॉरी, हाँ, पर मैं 1978 में जब आया तब उसका फेयर एंड लवली। मैं आपकी बात को बढ़ा रही हूँ कि क्योंकि इस पर आपत्ति जताई गई, ऑब्जेक्शन किया गया, तब जाकर वो ग्लो हुआ है। फेयर इज नॉट ओनली, फेयर इज नॉट ब्यूटी। तो इसलिए उनको अपना नाम बदलना पड़ा इस प्रेशर की वजह से। दूसरा, कंडीशनिंग की बात हो रही है, क्योंकि आपको भी कंडीशन यही किया गया है कि आपकी शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो घर से वो कंडीशनिंग शुरू होती है कि आपकी ब्यूटी जो है वो सिर्फ यहाँ से है, आप कैसा दिखते हैं, आप फिजिकली कैसा है, वहां से है। तो इसीलिए जब मार्केट में जाने से पहले आपसे घर से तैयारी होनी चाहिए। और एंकर की मैं बात कहती हूँ कि आपका चेहरा मोटा है कि पतला है कि कलर है, आप कितनी पतली हैं। कई मीडिया संस्थानों में आपने पैरामीटर कर रखे हैं कि इतना वेट होना चाहिए। अगर आपको एंकर हायर करेंगे तो उसको इतनी कमर होनी चाहिए, वो इतनी पतली होनी चाहिए। कुछ जगहों पर एज ब्रैकेट लगा दिया गया है जो पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए है कि आपको एज ब्रैकेट करना है, क्योंकि आप उस मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो यही मैंने कहा है कि शक्ल क्यों, अगर कोई 60 साल का पुरुष आराम से एंकरिंग कर सकता है, रोज डिबेट कर सकता है, तो फिर वही महिला, क्योंकि महिलाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
50+ जो है वो इक्का दुक्का महिलाएं हैं जो एंकर हैं, लेकिन उनको यंग दिखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो जो सब्जेक्ट जिस पर बोल रही हैं उससे ज्यादा वो कैसे दिख रही हैं उस पर फोकस करना पड़ता है। पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने सफेद बाल लेकर, उजड़े हुए बाल लेकर या कोई भी मिसमैच पहनकर वो बैठ सकते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ सुनेंगे लोग, लेकिन आपको देखेंगे तो आपका हेयर डू कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपके कलर है, आपने बोटॉक्स करवा लिया कि नहीं करवा लिया, सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरह की ये सब बातें हैं। तो रोल जो है वो अलग अलग हैं। और ये प्रोफेशनली भी एक चीज है जो मैंने मीडिया में भी नोटिस की है, और इवन बाय मीडिया एकेडमिक में भी मैंने नोटिस किया है कि आपको एक प्रूविंग रोल में जाना पड़ता है। जैसे आपने क्रिकेट की बात की, तो जब तक वो जीते नहीं तब तक मतलब अपने आप को प्रूव किया उन्होंने, तब हम उसको इक्वल रखेंगे। झांसी की रानी जब तक आप ना बन जाएं तो तब तक आपको कोई कुछ ना कुछ मुझे प्रूव करना है कि भाई मैं महिला हूँ, फिर भी मैं कॉम्पिटेंट हूँ, और मेरे में इतनी शक्तियां हैं, और मुझे ना ही रिजर्वेशन की जरूरत है या कुछ नहीं। तो ये प्रूव करने वाला जो मूड है ना, प्रूव करने से पहले आप ये भी देखिए कि उन लड़कियों को जिसने ट्रेनिंग दी थी उनका कोच कौन था, उसने कितनी मेहनत की। और वही जो कैप्टन थी, जब कोच आया देखिए कैसे पैरों में गिर गई थी उनके, वो किस तरह से, कितना इमोशनल मोमेंट था। तो मुझे लगता है यात्राएं साथ साथ चलती हैं ये, तो है ना। उनको वहां पहुंचाने के लिए भी पुरुषों की मेहनत थी। तो मुझे लगता है ये दिक्कत क्या है, जब भी डिस्कशन होता है पुरुष और महिला दो खाई बना लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए, लेकिन वही जो जब हमने हिस्सेदारी की और प्लेटफॉर्म की बात की है, तो जब 1983 में वर्ल्ड कप जो पुरुष टीम जीती थी उनके पास भी सुविधाएं नहीं थी। जब वो जीते उसके बाद पूरे इंडिया में क्रिकेट फैला, और उसके बाद उसकी ब्रांडिंग हुई, उसका प्रचार हुआ, और आज वो अरबों करोड़ों की बोर्ड के पास वो पैसा है। वही महिलाओं को भी मिला। अब महिलाओं को मैच फीस बराबर मिलती है, तो इससे भी पैसा बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है जाहिर तौर पर किसी भी काम के लिए। तो पेरेंट्स भी उसके लिए हैं, फिर वो ट्रेनिंग के लिए भी उतना खर्चा किया जा रहा है, और फिर ब्रांडिंग के लिए भी। जब तक आप दुनिया में प्रचार नहीं करेंगे कि इस तारीख को महिलाओं का वर्ल्ड कप है, उसका एड कैंपेन नहीं चलाएंगे, नहीं हो पाएगा। आपने वो मौका दिया, इसलिए वो देखने को मिला है। और दूसरा, एक जो आपने फोन वाली बात भी कही थी, सेंसरशिप जो घर से शुरू होती है। एक तो आपको पता होगा कि महिलाएं जो भी, अगर वो डांस करके कुछ अपनी बात कह रही हो या कुछ और, अगर आप एक विचारधारा के खिलाफ कोई बात कह रही हो, तो आर वर्ड आजकल बहुत चल रहा है। हर जगह पर एक आर वर्ड जो है वो महिलाओं के लिए टाइप कर दिया जाता है, और इस तरह से वही कि आपको टीजिंग के लिए अब ये नहीं करना है, आपको मॉलेस्ट करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। एक वो कैंपेन है। दूसरा, यही वो सोच है कि जब आप ये कहते हैं कि लड़कियां फोन ले लिया इसलिए वो ऐसा हो गया, या फिर अलग अलग तरीके से कि लड़कियां जो है उसमें ये सोच है कि उनकी अपनी अकल नहीं है, वो भेड़ बकरियां हैं। तो जैसे ही आप उनको एक्सपोजर दोगे, उनको फोन दे दिया, आप उनको कनेक्टिविटी दे दी, तो कोई ना कोई जो गलत व्यक्ति है वो उनको फंसा लेगा। तो आप अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को एडुकेट क्यों नहीं करते कि वो सही गलत का फर्क पहचाने? नहीं सर, मैडम पढ़े लिखे लोग भी ये बोलते हैं वो भाग गई, तो उसके साथ लड़का भी भाग गया है ना, वो अकेली तो भागी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि यही तो सोच है, और एडुकेट करने की जरूरत है। कि अगर मान लो जैसे लव जिहाद, अब एक लव जिहाद का ही एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर आप क्योंकि आप अभी भी उसे यूज कर रहे हैं। लड़की जो है, आपने अभी भी उसको ये यूज किया कि उसको तो अकल है नहीं, उसको तो कोई भी ले जाएगा, तो उसकी कोई गलती नहीं है। ये कैंपेन में जो है हमारी लड़कियां हिस्सा बन रही है। लड़कियों को एजुकेट तो करो कि वो सही गलत का फैसला करें, खुद वो डिसाइड करें, भेड़ बकरी नहीं है वो। सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर सोनल पांडे ने, बहुत डिटेल में हमें बात की है पांड्या ने। अब मैं इनवाइट करती हूँ प्रोफेसर आयशा तहेरा को। Professor thank you so much. I'll have another session at the academic staff college. So thank you so much, and very nice to meet you, sir. Thank you to invite me. Thank you, Sonal ma'am. Thank you so much. Thank you, Professor Pandya. Thank you. Yeah. I'm sorry I'm not able to, but I'll see the on YouTube, sir. So thank you so much. Yeah. Pleasure having you. Thank you so much. And now I would like to call upon Professor Aisha Tahira Rashid. Yes, Professor, आप सुन रही हैं हमने जो Yes, ma'am. Yeah. Thank you very much. After these two insightful lectures by both Sujata ma'am and Sonal ma'am,
I don't have much to say, but then, I'll still make an effort to, look at it as a media researcher, as an academician. And first of all, but before I actually go to my presentation, I'd like to express my heartfelt gratitude to Professor Bhanawat, because he's always been a guiding light for us, for, academicians like me. He's been a mentor and a guide, and he's always available for us for our, smallest of problems. He's like, always shown us the path. And I also would like to, express my heartfelt gratitude to the entire Communication Today team, because, this effort that you take regularly at a very regular, interval, the kind of effort that you make to organize panel discussions and webinars like this, and it's been going on for the last 28 years, so that is, hats off to you, sir, for leading such a wonderful group of intellectuals. And sir, can I make a presentation, sir? Is the screen share possible? आस्था, ये आपको को होस्ट बना दो ना, आस्था. Sir, I've got it, so I think I can start. Okay, right. Yeah. Sir, 1 second. Yeah. So, sir, basically what I'm trying to do in this small presentation is that, I'm trying to look at the role of media and how it can, rewrite narratives, how it can amplify voices, and then, transform societies toward gender equality. So after these, long, insightful discussions by both of my co-panelists, the role of media has been highlighted as a very powerful catalyst for advancing gender equality. And, how we discussed at length about how media shapes public perceptions, how it can, it has the potential to challenge entrenched stereotypes that exist in the society, and how it can, amplify and marginalize, amplify marginalized voices. So, wo औरत है जिन लोग का मतलब एक voice नहीं होता है, how media gives them a platform, and how at the end of everything, like, when it fulfills all these basic roles, how it can foster an inclusive narrative about women and her problems. So basically, क्या हो रहा है कि, this whole idea about media and its representation and the role of women within media organizations, I look at it, and this is just a humble effort on my part to look at it from the perspective of a media educator and also as a media researcher. Because, these are things that we need to, pick up, especially as media academicians, because आजकल हम लोग, when we are guiding research work, we normally, in order to remain in trend or to, move with the changing times, there's a lot of focus, I think, on issues like, artificial intelligence and how it is affecting. But I feel that somehow kahin na kahin, we have to go back to the basics. And I'm very thankful for the organizers for coming up with a panel discussion on this particular issue, which is gender and media, because हम लोग जितना भी artificial intelligence, digital media, information superhighway, ये सब बात कर रहे हैं, लेकिन we have to go back to the basics, because ultimately women जो है as a demography, we still continue to suffer. As a society, as part of a society, this whole, systemic injustice jo hai, that has been, continuing for, centuries. And wohi cheez kya ho raha hai ki media is, only highlighting or sometimes even amplifying those, kind of representations. So when we talk today about media and its representation, it is basically, I feel, a fundamental, or it is a very contested site of epistemic authority, where I feel power determines whose stories define social reality and which narratives gain legitimacy. So basically, hum kiska baat kar rahe hain? Who has the legitimacy to construct social reality, which narratives achieve circulation, and under what ideological conditions these stories are validated. So wo kaun sa story ja raha hai? So basically, we come across a very, big disjuncture, I feel, in transnational and also in media landscapes, where women, I feel, appear more often.
they are seen, they have the greater visibility today, but I feel that there is still a deep-seated structural inequality that exists, and that is something that is again reflected in media. So the gendered epistemic jo violence hai, the commodification, the this thing, regressive portrayal. Okay, so but then I feel that you may say, many people may say that we are still in a better situation where we are past that stage in that started in India in the 2000s to 2000 around 2015 tak. So for around more than a decade or so, we had this whole what do you call it, this virus call, I would like to call it a virus. We had this K series which always used to show women in very regressive dejected kind of roles, which was a very sad thing to happen in our media history. But then, even though we have passed that stage, but then even today, I feel the symbolic and material presence of women in institutions and also in the greater narrative of this debate, I think that is still missing. So, if basically what exists today is what we know as structural inequality. So if I'm to quote Nancy Fraser, because I feel that, if we look at this whole idea of media and gender, I feel it is very important for us to look at it through some theoretical, lens. And I feel that, Nancy Fraser ka jo wo a concept of participatory parity, which basically talks about how, equity in voice is inextricably linked with who controls media institutions. It's not just about having a voice, it's not about just having a formal right to speak, but also the material conditions, the basic conditioning, the ownership structures, the editorial hierarchies, the resource allocation mechanisms, everything, something that, enables effective participation in this whole meaning-making process. I feel that is very important, because these are certain data that I could collect from different, organizations. So we see that, when if you talk about the top 50 Indian media and entertainment companies, only 12% of the people are in the top positions, which is again, it does not reflect any kind of parity, because we may have 50% of the workforce as women, but where is the leadership role? So even in newsroom positions, like, especially in print media, we find that there's very less representation of women in big leadership roles. But when it comes to issues like the experiences, the negative experiences, the experience of harassment, of women, women there, they are, they score more than men. Almost 68% of the people, women working in different media organizations, they have said that they've at least experienced some kind of online or offline, hostile kind of work environment. Again, not to, to add to whatever Sujata madam had already discussed, there is this idea of pay gap. So there is basically, और एक चीज जो मैडम लोगों ने बोला था कि this idea of women having to conform to certain beauty standards. So a lot of things have already been discussed about it, but this is something that we can call or label as aesthetic labor, where even people like renowned anchors like Nidhi Razdan and Sandhya Menon, they have publicly discussed about how professional credibility becomes inseparable from their physical appearance. वो उन लोगों का मतलब they are known as good anchors and very renowned journalists, but then somehow or the other they are also judged by their physical appearance, something that their male counterparts do not have to go through. So representation, now we talk about representation, but that representation without power is a clear paradox. So basically, I happen to be part of this project, which is known as the Global Media Monitoring Project. So this is a research, this is one of the, biggest longitudinal research that has been going on for this past several years. And they
do look at the, they conduct this research every 5 years, and this is a global kind of research that they do. And it has been found that, if you talk about the entire, media scenario, not just in India, but all across the world, women have been not given a fair deal. So I feel that, women as subject experts, very few women, they appear on news screens as subject experts or as political leaders. But when you talk about women representation as revealed by the GMMP, so they are mostly shown as victims, or at best they are shown as survivors. So this is something which is very startling, and I feel it is very disturbing, because representation of women's, their achievements, they are never given equal footage on different media platforms. So this is a similar kind of study that was done by United Nations Women with another organized news organization, News Laundry. So they have also come up with similar statistics, where they have the entire crux of the story is that women are given very less coverage. The women's and their issues are given less coverage, and even when they are given coverage, they are always shown in a very regressive portrayal. So this is something which is there, and I tried to do a study or a review of some of the startling things that different media researchers have found, and I could come across these very important statements, like how the content of media distorts women's status in the social world. This was told by Gate Ashman way back in 1979. So we have James Coran, who talks about how the images and definitions provided by media are distorted and false, and how advertisements where women are always expected to look good, and you look good because you are supposed to please others, especially men. So this is one of the main tropes of all kinds of advertising. So these are things that research that have already been done. And I feel that today what we need is that we need to look at media, and if we are passionate about this idea of media and gender, then we definitely need to look at it from a very feminist perspective, because we understand that feminism is a very emancipatory transformation movement which was aimed at undoing domination and oppression. And today, if we engage in any kind of research, I feel it is very important that we look at media and its media and gender through the lens of feminist media studies, because when we do feminist media studies, we deploy feminist perspectives or feminist principles and politics in researching media processes and organizations, regardless of what the media content expresses, whether the media content expresses a feminist ethos. And unlike other approaches, jahan pe we try to hide our politics, I feel that there's certainly no need to hide the feminism in our media studies research, because unless and until we are very vocal about the injustice that has been done to us, this whole trend will continue. And I also looked at what kind of research epistemology, and I found that during the initial days there was a lot of talk. The first wave saw the identified the problem of absence and misrepresentations. So there were a lot of research which was done on critiquing or counting or measuring the underrepresentation of women in media. But then slowly we started realizing that women, whatever little visibility women had, it was very stereotypical. So you looked at media from the research perspective as media being a mirror and showcasing whatever is happening in the society, or media being the lamp where you can show the light. The second wave of media and feminist media scholarship, it saw how different researchers looked at the production analysis.
pura production process में, you know, what is the involvement of me, you know, women in the whole production, distribution, access process. And finally, there was also a lot of research done on the audience reception. Ki how are the audiences, you know, looking at this kind of, you know, portrayal of women in the media. And today we live in a world where there is, you know, women today, we believe that they have something that we know as digital agency. Now we have, you know, we cannot be complaining all the time that mainstream media does not give adequate coverage to women and their issues, because आज हम लोग के पास we have the opportunity or the scope or the platform of something that we know as user generated content. Now self-generated content. Now, you know, with just minimum effort, I can create a, you know, social media platform. I have the opportunity of raising my issues. But then what are women actually doing? Now, you know, it's a very sad thing that, you know, for decades we kept on complaining about how women were not given adequate coverage. We were not given a, you know, fair deal in this whole representation discourse. But today, when we have the scope of talking about our issues, what are we doing? We are, you know, obsessively engaging with, you know, platforms like Instagram, TikTok, and, you know, even, you know, different kinds of vlogging we do. What are we doing it? We are only trivializing ourselves. So in the name of, you know, earning, you know, some quick bucks, so we are, you know, sometimes I feel that we as women, we ourselves are to be blamed, because, you know, we are, you know, media has always trivialized us, and we are only adding to that whole trivialization process. So, but then I do not want to also negate how different movements like the Me Too, or, you know, there are different digital communities which are leveraging this thing, social media, to bypass traditional gatekeepers, and how they are, you know, using it as a platform for collective action, and how they are also challenging mainstream media narratives. So having said that, we also cannot dismiss the fact, we cannot, you know, close our eyes to the dark side of digital harassment and surveillance. So, you know, OGBV, which is online gender-based violence, that is a porn, this thing, you know, this is things like revenge porn, cyber flashing, non-consensual image sharing, doxing. So these are things that have emerged as a new challenge for women nowadays, not just women, but also for non-binary people. Because, you know, only yesterday I was looking for a tool for, you know, photo generation. And when I, you know, searched on Google for some AI app for photo generation, the first app that came to me was some, you know, the first link that came on Google was a link from China, and the name of the thing was AI kissing, you know, photo generator. So you can very well understand, with the coming of newer platforms, our, you know, problems have only, you know, multiplied. So while we feel that digital media is a platform where we can raise our issues, we can, you know, earn our bread and butter, we can become an influencer. I can, you know, right from my cooking to my, you know, fashion designing, my travels, I can sell anything. It also, you know, brings to light a lot of issues, like, you know, the associated risk with the platform. So if we have to conceptualize now about equity and voice, so like we have already discussed, you know, visible, there are certain things that are, you know, visible on screen. We can all see the on-screen visible on-screen representation, but what is something which is invisible is the off-screen hierarchies. So equity, like Bhanavat sir has already mentioned, we talk about equality, but equity is something which is different, and it refers to the structural access of, you know, production infrastructure, the access to decision-making apparatuses, the agenda-setting mechanisms, and the safe labor conditions. So, and similarly, when we talk about voice, do women find a voice on screen? Now, as an anchor or as a filmmaker, you know, it is not just important to have a representational, you know, voice, but also to be engaged, to be brought in as experts, to be brought in as analysts, to be brought in as, you know, narrative protagonists or autonomous storytellers. So in that sense, today, I'm very thankful to Professor Bhanavat for,
I'd like to look at it from a very different perspective from Sonal Madam and Sujata Madam, because I feel that today he's given the platform to all women, because the sensitivities that we will have when we talk about women and their issues is going to be, sometimes maybe a non-issue for our male counterparts, because the sensitivity, because we are the ones who have to go through. For example, I'll just give you a small example that, Sonal Madam was talking about Atta. So these are things that, the women has to be the one. Even, today, before I could join from this presentation, I had to cook my, lunch. So, it works that way. So basically, if you have to look at this whole idea of media and gender, I feel we need to look at it from the perspective of communicative justice, asking who speaks, who is heard, whose narratives achieve, hegemonic status in public discourse. And I'm particularly interested in this whole idea given by Gay Tashman, who talks about symbolic annihilation, where she talks about how media makes a deliberate effort. Media, basically makes a deliberate effort in, these three strategies. What media does to women is that it omits, so these three strategies are omission, trivialization and condemnation. So first of all, media हमेशा कोशिश करेगा कि कुछ issues जो women face कर रही है उसको बोले ही ना. Second is like, if there is a voice that is being raised, media will try to trivialize it. Ki, like Madam said, ki, Chanda party or this mocha party kind of thing. And then condemnation. Any small thing that, women do wrong, so this will be highlighted and this will be condemned. Okay, whether it is mainstream media or even the digital platforms. And so, it talks about even representation politics. We're not going into details about this because these are all, ideas about how media becomes a site for ideological struggle over gendered meanings and identities. And there also are like, different perspectives of looking at this whole idea or discourse of media and gender from the feminist media perspective of how, you look at patriarchal structures in media ownership, production, culture, representational norms, and how, even media can be looked at, media and gender can be conceptualized from the critical political economy perspective of how concentrated media ownership, the advertising logics, the platform capitalism, and the commercial imperatives, these are the things that shape voices. So basically, women-related issues ko bolne ke liye, what kind of, advertising, revenue aayega, nahi aayega. So these are the, things. And finally, Kimberly Crenshaw's whole idea of intersectionality. Intersectionality, ki hum log jab bhi, whenever we talk about women, there's no such thing as universal women. There's no such thing as universal women because every, the whole idea of womanhood, it has to go through a method, a matrix of interlocking categories like race, class, sexuality, ability, age, even nationality. So basically, कोई भी women का experience similar नहीं होता है. So we need to look at, different groups of people in this whole microcosm of this thing has to be looked at very deeply. So there is, certainly no scope for us as researchers or media academicians to, to have a carpet kind of, approach towards researching media and gender. So we need to look at it from a very, deep seated, this thing. We need to look at the problems and then we need to, find strategies to deal with those things. Another idea that was very interesting for me was this whole idea of performativity by Judith Butler, because according to Judith Butler, gender is not something which is fixed or internal, it's not a fixed internal identity, but gender is what we do. So media is nothing but it is a stage for gender performance. So society mein jo ho raha hai, so it is just a reflection of whatever is happening, and how women dress, how women should talk, how women should behave, how women should be, always like, obeying the
other members of the family. So these are things that we see in society, and media constantly dictates and reinforces these performances, even though, I feel that media always has a very important role, because media can always, instead of only using the ideas or notions that we see in society, instead of only amplifying these performances, so to call gender performances, media has the ability to question. Media has the ability to alter these perceptions or these performances. So this whole idea, of this binary between rigid male and female binary, that should somehow change. Also sometimes to include non-binary representations, and making gender a very conscious resistance. So basically, if we look at the kind of framing media and women have seen over decades, we see the traditional frame was that of the self-sacrificing mother, which was Nirupa Roy in Diwar. Hindi cinema is replete, even today it is replete with ideas of being the pativrata woman, the docile daughter-in-law. So these are things that we see right from the times of Nirupa Roy. Aaj tak hum log ko ye dikhai deta hai. But then in the 1990s, if we take an example of, say, a film like Dilwale Dulhania Le Jayenge, so they, the 1990s liberalization, it introduced the notion of the westernized vamp versus the sanskari heroine dichotomy. So Simran, Kajal's role in Dilwale Dulhania Le Jayenge, she wore short skirts in London while also performing beautiful, bahu roles in Punjab. So, we have other examples of how women were shown to be the empowered consumer, like in films like, Fashion, Cocktail. Then this whole idea of how the, intersectional erasure of when we talk about, say, things like Dalit women, Adivasi women, Muslim women, disabled women, even queer women. So un logo ko representation kitna mil raha hai, that is something that we need to see. So these are certain statistics that we see online about women facing online abuse. And basically yahan pe, even today, like, there is gender digital violence. Normal women too, they go through a lot, but even renowned journalists like Rana Ayub, Swati Chaturvedi, we already know about Gauri Lankesh. So, and especially Muslim Dalit women, people belonging to marginalized communities, they go through a lot of issues on digital platforms. And we also need to highlight on things like concepts like shadow banning, reduce visibility, which are a part of our digital landscape. And especially today, we feel, most women today feel that, this is something that was theorized by Brooke Erin Duffy. So she called it aspirational labor. It basically captures how young women enter digital content creation with promises of flexibility and creative autonomy, but all they encounter is unpaid work, algorithmic invisibility, and commercial exploitation. So basically, we need to realize that we today live in a post-feminist media culture where we see contradictory advertising. We have this Dove's Real Beauty campaigns. At the same time, we have Fair and Lovely, which is now Glow and Lovely. Okay, so if we have Tanishq interfaith marriage wala ad, we also have some other regressive kind of portrayals also. So a similar thing is like when we talk about films like Lipstick Under My Burqa, we also have to talk about how we still have Katrina Kaif and Nora Fatehi coming up with very suggestive item songs. So basically, these are images, but then the good thing is also we also need to acknowledge the rise of body positivity, diversity, where women of different shapes, sizes, ethnicity are given a voice or representation. At least some of the companies are making, especially in their advertising
ventures, they are trying to include women of all, categories. So these are, I feel ki ye pura situation mein, I'll just, end up with 2 more slides, sir. So this whole idea of, mainstream media, we feel that, mainstream media jo hai, it is acting as a mirror. It is only amplifying the injustice and systemic, imbalances that occur in society. But I feel that community radio, different, positive things like women's sports media platforms like the Locker Room, then video collectives. So these are, or the, even feminist digital, publications like the Ladies Finger, Scroll.in. So these are things that may go a long way in highlighting the injustice that is meted out to, one half of humanity, and that has been going on for centuries. And then, these are, I feel, these alternative platforms. So these, I think, are the only, ray of hope for us, because these are the ones which can counter the hegemonic, notions of women in society. Because basically, and what we need today is like, the different, Madam Sonal has already mentioned about the regulatory interventions. So I'll not go into those, but, basically media does need to be shown the mirror. It's time that media self-regulate. The industry needs to self-regulate. And on top of that, the government should be very stringent especially when it comes to, things like digital media and artificial intelligence. We need to have, some intervention on the part of the government to, regularize the whole, activities. So there could be like, unless and until. So, but, having said everything, these are some of the notions that I had about media and gender. But then, this is an image that I found very startling. Like, when you want to, show a man, we always see men in this light. We see a man who's writing, we see a man with a gun, we see a man of, who's into farming. He's like, looking at doing some official work, going to war. But what do we see when we talk about women? These are the images, these are the stereotypical images that we see all around us. And I feel that more than anything, more than all the, more than anything, I feel that, we need to alter. It is high time that we alter this, shared cultural memory of gender. Because, we cannot always be looking at men in this light and women in this light, where women is stitching, she's like, taking care of the baby, she's doing the cooking. Because ultimately, I feel that, when we talk about research in media and gender, I feel that it is very extremely important that we start at the basics. We go, we should be doing research, not only, looking at the representation or the media organizations and, the workforce, female workforce, but I feel that we need to go for some kind of intertextuality in our research approaches, because we need to start from the basics. We need to look not at only media, but we also need to look at the, pre-nursery or nursery school, textbooks, where, even you may have encountered these things. Okay, what is the, in nursery class, 2-3-year-old kids are taught. It just, when they start writing, when their cognition skills slowly develop, and when they start, writing, reading and writing, they are taught. Okay, what is the father doing? Father is reading a newspaper. What is the mother doing? Mother is cooking in the kitchen. So unless and until we alter these, text, this whole, this whole vicious cycle of women being, shown in this particular light, as you can see in this photograph, this is something that media will always be replete with. Media will not change, because this is what is something which is normalized. So what are we trying to normalize? We as researchers, we need to, put a focus on all these things. What are the core values that we are trying to give our young girls? What are the core values we are trying to give the male counterpart right from the time a child is, he started going to school? So these are things that we need to look at.
And I feel that, like Sonal Madam says, the only thing that where we can contribute as academicians is through research and through diverse ways of looking at this whole idea of gender and media. So that is all I had to say, sir. I'd like to end my presentation today here. Thank you so much, Professor Aisha, and it was really well-researched presentation. And I would like to add that now we are seeing ads with men changing diapers and putting the child to sleep. But it's very superficial still. And we need to sensitize. I mean, we need to sensitize our boys and men so that they understand what women are going through and what are their problems, so that तभी हम इस तरह के एक जैसे हम को एजुकेशन कहते हैं उस तरह की हम एक डिस्कशन कर पाएंगे. When we don't need a women to talk about women, but man can also talk about women. But उसके लिए शुरू से उसको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा तभी वो समझ आएगा. और ये जो जेंडर बाइज रोल्स हैं, मतलब कुछ स्किल्स हैं विच इज लाइक सर्वाइवल स्किल्स, नॉट इट्स नथिंग टू डू अबाउट अ मैन और अ वुमन, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की है. तो थिंग्स आर चेंजिंग, बट अभी वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर हैं. एंड स्टिल देयर आर वुमेन हु आर वेरी सक्सेसफुल, बट देयर आर मेन बिहाइंड देयर फादर और देयर हस्बैंड्स. सो उससे हमें आगे बढ़ना होगा. और इसीलिए वहाँ की सोच जो मुझे लगता है एकेडमी से शुरू होती है. एकेडमिशियंस जो हैं, जहाँ पर कम उम्र में जाते हैं लड़के लड़कियां, तो उनको वहां से ही तैयार करने की जरूरत है. तब जब वो वर्क फोर्स में जाएंगे तो वो सोच के साथ जाएंगे कि लड़कियों को हम बराबरी से देखें. लड़कियां भी सोचे कि हमारी शक्ल के अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है जिस पर हम बात कर सकते हैं, जिस पर हम फोकस कर सकते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन मिल गया है, बट हिस्सेदारी भी चाहिए और हमारी आवाज भी सुनी जानी चाहिए. या तो बस कंक्लूड करा क्या सेशन शेड्यूल है अपना. वंदना मैम बचे थे, बट शी इज नॉट देयर, सो वंदना जी नहीं आएंगे. हाँ. Okay, so yeah, it was indeed a thought-provoking discussion. All three of you talked about various aspects of women, their representation and equity, from talking about poor class or middle class or educated and illiterate people. It was really a treat to hear you all speak about these issues. And now, on behalf of Writers Reservoir and Communication Today, I want to felicitate our distinguished panelists for their time, wisdom, and contribution to this important conversation, and by presenting e-certificates and mementos. We thank you, ma'am, Ms. Sujata Parasha. It was really so good to listen to you talk about आपने बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में बात की, and especially मीडिया के जो इंडस्ट्री में जो रिप्रेजेंटेशन है उसके इशू के बारे में बात की. Professor Dr. Sonal Pandya, thank you so much, ma'am. And Professor Dr. Aisha Tahira Rashid, which was her talk was really well researched and well presented with all the pictures and everything. So thank you so much, our panelists. And as we come to an end to the panel discussion, I would like to extend my e-memento रहेगा ना शायद नहीं. आस्था e-memento है ना. Yes, sir. I think Aishwarya is presenting. Okay, we'll wait. ये सब हम WhatsApp पे भिजवा देंगे आपको. जी सर. थैंक यू सो मच. ऐश्वर्या e-memento होंगे ना, e-memento. हाँ. Thank you sir. Very nice. Thank you, and yeah, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी हो सकता है. It was all sir's idea. From the start, he wanted to do it, presenting e-bouquets, e-mementos, e-certificates. Very nice. Quite innovative. Yeah. हम सबकी एनर्जी फीकी पड़ जाती है सर की इनिशिएटिव्स एंड एनर्जी के सामने. बस इसमें कमी इतनी है कि साथ बैठ के लंच और चाय नहीं हो पा रही है, बाकी सब आयोजन वैसा ही है.
सर उसके लिए भी फिर वर्चुअली भेजनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया सर। Thank you, Babita, ma'am. group Thank photo? you, sir. Thank you so much. Yes, sir. I'm just coming to it. So I want to thank you all the experts, all the participants, all the researchers, and all the audience to listening, sitting through the panel discussion and listening, and adding to the immense value to this theme of the conference. I also want to express my sincere thank you to our chief patron, our respected Professor Sanjeev Bhanawat, for his always timely and untiring guidance and constant support in shaping this event. And my appreciation also extends to the organizing team for their seamless coordination, which we all can see. And thank you all for your active engagement. Now, I request all of you to please switch on your cameras for the group photograph. Thank you, everyone. We have taken the photograph. We'll start with session 1 at 2 p.m. sharp. So stay tuned for that, and thank you all so much. Thank you so Thank much. you. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Recording.